Yes, sir, you can start now. Yeah. Thank you. So you're seeing my screen right now? Yes, sir, visible. Visible, no? Oh, Yeah. yeah. So, see, so somebody asked me that uh, ethical and compliant healthcare AI solutions. Okay. So this is our topic now. So it is going to be interactive. So I'm not, yeah. So I'm not going to means be theoretical here. Okay. So I give you some thoughts. Okay, and then you ask questions. So that first I slide. request all the participants, Yeah. So I expect, please. please, but I expect participants to ask me something. But please don't get technical. Means it is about data. Okay, data and data security. It is not about implementation. So because implementation is a very technical thing. So shall I start my presentation a little? It is a very small. Yes, sir. Okay. So then only you will be able to ask me questions. So see here, we are going to ethics because as I told you that there is no standards, and in the light of lack of standards, no compliances are there. Okay. And I will tell you why there are no standards being set and why therefore no compliance are being set till now. So what is happening? This IT industry as a whole is a pseudo engineering. It is not a real engineering. So suppose you are an automobile engineer, a mechanical engineer, there are standards for everything. And there are very well defined standards. Suppose you want to design some electronic gadget. So there are chips. So there is a chip booklet, one booklet that is thousands of page. So there are a lot of chip numbers and their specifications coming. Okay. Suppose you are a welder, there is a stainless steel booklet. So I will take which stainless steel specification I will use, what kind of welding material I will use, and everything like that. There are some mechanical properties which alloy complies with mechanical and chemical properties. But what is happening in IT? There have been no standards because it is a pseudo engineering. It is not a real engineering. So why I say that? Because it is not backed by a real mathematical basis. It is backed by a very crude logics. Okay, AI is only uh, augmentation of that fuzzy logic or some crude type of logic. So we are doing some things based on those chips. But this is not a real engineering. That's why governments find it difficult to make standards for this industry. So I go forward now. So uh, coming to this, uh,
AI refers to the ability of machines to simulate human intelligence. Okay, so you know this what is there on this screen. So I'm going forward. So these are the uses in healthcare of AI: patient monitoring, diagnostics, and imaging, and predictive analytics, personalized treatment, virtual health assistant, drug discovery and development, improved accuracy, okay, cost efficiency, enhanced patient care, increased accessibility. These are the implementation of AI in healthcare. So our concern is not that, okay? Our concern is about data and implementation of data and ethics. So from this slide onward, I explain you. So what is happening? There is one thing called data privacy and security. So in healthcare domain, that data becomes highly sensitive. So you might have heard used to happen one case in Hollywood. One Hollywood actor had HIV infection, and he went to some hospital and for treatment, and hospital blackmailed him. His name, you know, he is a very famous actor, and hospital blackmailed him and squeezed every penny of his asset that was in millions of dollars. But hospital didn't stop there. Hospital blackmailed 400 actors. So what happened? It was a very big scandal. Hospital, there were 400 actors, very big actors of Hollywood. Hospital had blackmailed, and every every penny of their property hospital had extracted. Only after they were unable to pay you money. Wait, are you hearing me? Hello? Yes, sir. Audible. Yes, sir. So, yeah, so only after that it came to reveal, because they complained to police. Okay, then only then also it was suppressed. So this happens with you also. Suppose somebody has a cancer, or I have cancer or HIV infection. So I want to keep my data secret from nurses and hospital staff also, because that will affect my health care. Okay, so it is a sensitive issue. So that is the first point. So data should be private, and this privacy is more important here. Second thing is bias in AI models. So there is one thing happened. So data was there with big companies, big pharma companies, and what happened? For black people, they excluded data of black people from their processing. Because they thought black people won't pay them. Okay, so they filtered the data of black people and only produced the healthcare for some medicine for white people. So that kind of biases happen in AI models. Okay, so there are a lot of models biases we can implement. And bias is happening not only in AI models, it happens everywhere. Suppose I'm in charge of some government data, I will say that data should be filtered by religion, data should be filtered by caste. A lot of people are trying to do that, caste census. So everybody wants to filter the data, use the data. So this is a data bias, and it goes. Wherever data goes, bias goes. Okay. So, but we should try to avoid that. So this is a part of ethics. Third thing is regulatory and ethical concerns. So
And fourth thing is integration with existing systems. Okay. Now we come to ethics. So, by definition, ethics is the study of moral principles and how people should behave. So, when I'm in control of the data, I can misuse it. Okay. And ethics in healthcare is important because it promotes. See, I'm reading this presentation only. Promotes patient-centered care. Okay. So, what will happen? Suppose some doctor comes to know about my personal data, he will implement some bias. And another thing is build trust. So my data should be secret. And suppose there is some hospital, and I go, and some actor goes, or some rich person go. So you see, the healthcare delivery to me and that a rich person is different. Okay, that should not happen. So hospital staff should not know who is rich, poor, or who is. You got it. So what happens? Earlier we had Indian Medical Council. You might have heard their name, IMC. So and now we have come with National Medical Commission registered practitioner. Okay. So this is a new medical administrative authority come in India in 2023 only. So this authority is controlling whatever things are happening in healthcare industry. So earlier it was Indian Medical Council, and everywhere you will hear about Indian Medical Council. It approves medical college. It has some methodology that tells how the dog bite patient should be treated in hospital. There is some 300 permutation and combination of how healthcare can be delivered in hospitals. And that permutation and combination comes from World Healthcare Organization. And that is implemented by this Indian Medical Council. And now onwards, this will be implemented by this National Medical Commission registered practitioner regulations. Okay. So this is a different body, came into existence last year. So there is a one. Sorry, I am not habitual to talking this much. My voice is clear or not? Hello? Yes, sir. Yeah, because I don't talk usually. I'm not means teacher. So my voice is hoarse, getting hoarse. So see, here there is a fun part. So you see the second topic. It is second point. It is between healthcare providers and receivers. Healthcare provider. So what is happening? That ethics part or data privacy part solely depends on moral standing of healthcare provider. They are not binding to keep your data secret. You come to know. If they are good people, they will keep your data secret. They won't blackmail you. Okay. And they won't squeeze a lot of money from you if you are rich. Second thing, implementation issue is with regulatory authorities. Right? And regulatory authorities are courts. If your case, if you go to court that some discrimination happened in some hospital or some
patient care was not happened properly. So what happens? There is nothing court can do against hospitals or healthcare providers right now. There is nothing court can do against health insurers. Okay, so law is spineless now because there are no regulations. If insurer tells you that he cannot give you any claims on your disease, you cannot do anything today in today's case. Okay. Hello. Actually, Yeah. sir, I want to ask that why we can just complain about that if we have any difficulty regarding these insurance policies. Yeah. So what is happening? This is a regulation not come into force still now. That data privacy, see that ethics part come. I'm telling you. See in the later slides, the whole talk of ethics you see here. Okay, means Okay. see ethics part come. You see in this slide second part, there are data predators. So everybody is data predator. Government is data predator, and everybody wants to earn money. Government wants to earn money. Okay. Yes, yes, yes. So ये होता क्या है मैं बताता हूँ. जैसे शराब है, शराब अनएथिकल है, लेकिन Actually, it is written over there that on that bottle. Yeah. Smoking is dangerous. So Yeah, they have said their policies like that. या लेकिन क्या होता है, गवर्नमेंट धंधा करने के लिए बैठी है. ठीक है. Yeah, yeah. तो आपकी हेल्थ और आपकी जिंदगी सेकंड प्रायोरिटी पे है. फर्स्ट प्रायोरिटी पे दे आर बिजनेस पीपल. गवर्नमेंट इज बिजनेस पर्सन. उनको टैक्स कलेक्ट करना है. टैक्स मिलता है टोबैको और वाइन से. ऐसे ही हेल्थ केयर में क्या होता है, जो आपका डाटा है ये इंश्योरर के पास रहता है. इंश्योरर LIC जैसे बहुत बड़ी कंपनी है. इट इज Yeah, ओके. ये 40 लाख 50 लाख करोड़ रुपया गवर्नमेंट को डिपॉजिट करती है. गवर्नमेंट वो पैसा यूज करती है. Oh ठीक my है. God. हाँ, अगर आपका डाटा आप बोलेंगे कि मेरे को क्लेम चाहिए और गवर्नमेंट बोली क्लेम दो, तो क्या होगा, वो पैसा गवर्नमेंट के पास नहीं रहेगा. सो दैट इसीलिए यहाँ पे रूल्स नहीं बन रहे. यहाँ पे एथिक्स की बात हो रही है. एथिक्स की बात हो रही है. जैसे झगड़ा हो रहा है और गुंडा ही आपका सरदार है, वो क्या बोलता है, सुलझा लो यार. ठीक है. तो क्योंकि गुंडा अनएथिकल है, जो आपके टॉप में, आप गुंडे के पास गए तो न्याय मांगना है, इस तरह की चीज होती है. तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, इसीलिए. ठीक है. लेट अस गो स्लोली टू दैट पॉइंट. So let me explain it. So third point, that ethics part solely depends on moral standing of healthcare providers and regulatory authorities. That is government, that is court, okay, and law and insurer, okay. And see here, second point, there is no regulatory authority in India. You got it? After 75 years. And coming to third point, you see, जो ये बात कर रहे हैं ना, ये बात हमने नहीं करना चाहिए एज ए IT प्रोफेशनल. एथिक्स की बात, क्योंकि हम लोग सॉफ्टवेयर बना के दे देते हैं. इम्प्लीमेंट करने वाले कौन, हॉस्पिटल वाले लोग हैं, जो मैनेजर्स है, वो पैसा कमा रहे हैं. एथिक्स की बात उनकी है. आप तो सॉफ्टवेयर बना के हट गए ना. ठीक है. तो आप डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन वो लोग कर रहे हैं कि वो लोग नहीं कर रहे डिस्कस ये चीजें. आप बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना ऐसे हैं, जैसे आप एथिक्स की बात कर रहे हैं, डाटा प्राइवेसी की बात कर रहे हैं. ये आपका फील्ड नहीं है. एंड सो लास्ट पॉइंट, सो द IT प्रोफेशनल्स शुड ओनली कंसर्न अबाउट टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन दे प्रोवाइड, नॉट बियॉन्ड दैट. सो नाउ एज अ समरी आई एम टेलिंग यू, indirect whole topic is that data is new oil. आपको पता है, जैसे जब ऑयल की डिस्कवरी हुई थी सऊदी अरेबिया में, ठीक है, तो ऑयल को पेट्रो डॉलर बोलते थे हम लोग. आज
जो डाला रहता है वो डाटा होता है इन पहले जो पेट्रोकेमिकल का जो स्टेटस था आज डाटा का स्टेटस है और ये नया आइल है एंड एवरीबॉडी वांट्स टू बेनिफिट फ्रॉम इट। गवर्नमेंट सबसे टॉप पे है, ओके, कॉर्पोरेट सेकंड नंबर पे है और आप कहीं पे नहीं आते। आपने कभी सुना है कि आपको पैसा मिला है? आपने बहुत सारे फॉर्म भरे, स्कूल में फॉर्म भरा, गवर्नमेंट ऑफिस में फॉर्म भरा, आपसे बहुत बड़े लंबे लंबे फॉर्म भरवा के लिए जाते हैं कि आपके पिताजी का नाम क्या है, माँ का नाम क्या है, दादा का नाम क्या है, दादी का नाम क्या है। कोई जरूरत नहीं है, वो लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि वो आइल है उनके लिए, लेकिन कोई आपको उसका पैसा नहीं दे रहा है और वो कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं कि वो डाटा का कहाँ यूज कर रहा है। और आपसे हर स्टेट में डाटा मांगा जा रहा है। डाटा नहीं देंगे आप तो आपका काम नहीं होगा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी, जबकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी आपके केवल आधार कार्ड से ही पता चलना चाहिए कि ही एग्जिस्ट, दैट इज ऑल। जैसे आप पेंशन डिपार्टमेंट में आते हैं, आई एग्जिस्ट, पेंशन डिपार्टमेंट शुड नो ओनली दैट एंड दिस इज माई नंबर, ही शुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन माई नेम, माई कास्ट, माई रिलीजन, गॉट इट? So but they want to collect the data. So these are data predators that are in possession of your data. So the talk of ethics means who shares what data. Ethics का मतलब ये है कि गवर्नमेंट ये बोलती है एथिक्स के नाम पे कि डाटा हमको दे दो, हम कंट्रोल करेंगे। कॉर्पोरेट बोलती है कि डाटा हमारे पास रहेगा, हॉस्पिटल बोलता है डाटा हमारे पास रहेगा, ठीक है? हर आदमी डाटा अपने पास रखना चाहता है। कि जो लड़ाई है एथिक्स की वो ये नहीं है कि आपका डाटा सिक्योर रहना चाहिए, नहीं, लड़ाई ये है कि डाटा किसके पास रहेगा, कौन इस्तेमाल करेगा डाटा को, ठीक है? सो आप एनालॉजिकली देखो, फोर्थ पॉइंट, कंपनीज इन चार्ज ऑफ डाटा कैन बी यूज एट, जैसे आईओएल एंड रिफाइनरी ऑफ डाटा है। जैसे जिसके पास डाटा है तो वो उसको सोचो कि वो सऊदी अरब है जिसके पास आइल है, ठीक है, आइल का रिजर्व है, तो कंपनी सऊदी अरब ना, उनके पास तेल का कुआं है, उनके पास डाटा है। और कंप्लायंस मीन्स गवर्नमेंट वांट्स द फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं, द टॉक ऑफ कंप्लायंस मीन्स गवर्नमेंट वांट्स इट्स कंट्रोल, गवर्नमेंट वांट्स इट्स कट, लाइक उनको शेयर चाहिए गवर्नमेंट को ऑन डाटा के इस्तेमाल पे, गवर्नमेंट को डाटा पे टैक्स चाहिए ऑन दिस डाटाइल बिजनेस। लास्ट पॉइंट, there is no talk of whether a user can sell his her data, got it? आपका डाटा आपके पास नहीं है इसलिए आप सेल कर ही नहीं सकते वो डाटा, समझ गए ना आप? आगे आते हैं, कंटिन्यूड। द ओनली वे टू डेमोक्रेटाइज डाटा, अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहा हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। डेमोक्रेटाइज डाटा है ना, मेरा डाटा मेरा ओनरशिप, दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी, ओके? नॉट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड ओन इट। जैसे आपकी आवाज है, आवाज का सैंपल है, सीबीआई के पास गया, उन्होंने एआई से आपका आवाज बना लिया, किसी का कन्वर्सेशन से वो कोर्ट में पेश कर दिया और आपको 10 साल की जेल हो गई। ऐसा होता है, ठीक है? ये इसलिए होता है क्योंकि आपका डाटा दूसरे के पास है। इसलिए जो सॉल्यूशन होता है आइडियली वो ब्लॉकचेन बेस्ड डाटा रहना चाहिए, ठीक है? ब्लॉकचेन का मतलब ये है कि यू ओन योर डाटा, ठीक है? फिर गवर्नमेंट बोलेगी हमको डाटा चाहिए तो आप बोलेंगे कि चलो मैं देता हूँ, आप क्या दे रहे हैं बदले में, ठीक है? आपको लगता है कि डाटा फ्री में देना चाहिए या पैसे लेना चाहिए तो आप शेयर कर सकते हैं। सो डाटा शुड ओनली बी शेयर्ड यूजिंग ब्लॉकचेन। सो मेरी बात सुन रहे हैं एवरीबॉडी? एवरीबॉडी? Yes, sir. हाँ, सो इसका ओनली सॉल्यूशन है कि डाटा ब्लॉकचेन में रहे। तो वो क्या होता है, ब्लॉकचेन का मतलब ये रहता है कि ये पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी है, आपका डाटा आपका है, ठीक है? जिसको चाहिए वो ले ले और आप शेयर उसी से करेंगे जिसको आप शेयर करना चाहते हैं। जितना शेयर करना चाहते हैं उतना ही शेयर हो। तो एक ऐसा एम्प्लॉय हेल्थ केयर, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ केयर रिकॉर्ड हो जो फेडरेटेड हो, जो डेमोक्रेटिक हो और जो ग्लोबल हो, और आपके हाथ में ये कंट्रोल हो कि आप डाटा किसके साथ शेयर करना चाहते हैं और उसका आपको रिवार्ड मिलना चाहिए। दैट इज ऑल, दैट इज ओनली वन वे पॉसिबल, ओके? एंड दिस टॉपिक इज क्लोज्ड, है ना? टॉपिक जो अपना पूरा टॉपिक था डाटा प्राइवेसी, ठीक है?
ये टॉपिक ही रेज नहीं होता। डाटा प्राइवेसी है ना, जब डाटा प्राइवेसी का मतलब है कि डाटा आपके पास है नहीं, तो अगला बोल रहा है कि डाटा प्राइवेसी रखेंगे, हम आपका डाटा शेयर नहीं करेंगे। अरे भाई, आप होते कौन है इन द फर्स्ट हैंड डाटा अपने पास रखने वाले, ठीक है? हमको नहीं चाहिए आपकी प्राइवेसी, समझ गए ना आप बात? और वो अगला बोलता है कि वी आर एथिकल पर्सन। आपको एथिक्स से मतलब नहीं है कि अगला एथिक्स है फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, आपका डाटा आपके पास ही है। सो you should be able to decide whether to use your data, how to share your data, how to benefit your data from your data, and there is no point of talking about ethics, security and compliance. Okay, that is a shit. This topic is not relevant now. You got it, everybody? Now Yes, sir. yeah. So मैंने 2 लिंक्स दिया है। इवन देन ना, इतना टॉपिक, ये अपना टॉपिक खत्म हो गया इस पॉइंट पे, लेकिन फिर भी ये 2 लिंक्स दे रहा हूं मैं, जिसको डाटा प्राइवेसी का इम्प्लीमेंटेशन करना है। इट इज अ लीगल एस्पेक्ट। ओके, ये 2 लिंक्स दिया है मैंने, तो ये लिंक्स आप फॉलो कर लीजिए। ये बहुत डिटेल्ड लिंक्स है, इसमें स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस है कि हाउ, इवन इफ यू आर इंटरेस्टेड, how you can implement. It is a manager's perspective, it is a legal perspective, and ये IBM का डॉक्यूमेंट है। ओके, IBM की तरफ से आया हुआ है। एक्चुअली ये जितना भी डाटा प्राइवेसी वगैरह का है, आप जो एथिक्स वगैरह का टॉक है, ये IBM कंट्रोल कर रहा है, nobody else is controlling it. You got it? तो आपको IBM की साइट पे जाइए, IBM की साइट पे ही सारी अच्छी चीजें मिलेंगी आपको, जिसको भी इंटरेस्ट हो डाटा प्राइवेसी के बारे में। एंड दैट इज ओपन टॉक। ओके, दे आर ट्राइंग टू मेक रेगुलेशंस, और IBM को ही सारा फॉलो कर रहे हैं। जैसे GDPR है, कुछ भी है, उसका बेसिस IBM के डिस्कशंस है। IBM में पूरा एक फोरम है जो ओपन सोर्स है, ओपन है, आप भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप उनके डॉक्यूमेंट्स पढ़ सकते हैं, ठीक है? सो consult these IBM documents, and these links also come from IBM documents. And now अब ये इन डॉक्यूमेंट का मैंने एक्सर्ट निकाला है, बस मैं आपको समझा दे रहा हूँ, फिर क्लोज कर देते हैं। एक्चुअली यहाँ पे क्लोज होना चाहिए आपका, ठीक है? लेकिन ये जो चीज है, इवन इफ there is something you have to talk, then you go this way means okay. So see, policy recommendation, ये policy recommendation IBM की तरफ से है। ओके, GDPR यूरोपियन यूनियन, अमेरिकन गवर्नमेंट, होता कैसा है कि यूरोपियन यूनियन और अमेरिकन गवर्नमेंट और UN की डिपार्टमेंट्स, दे आर द फोररनर्स। IBM जो बेसिस बनाता है, उसके बाद ये लोग फॉलो करते हैं, ये लोग स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, और वो स्टैंडर्ड्स फिर एवरी कंट्री फॉलोज। जैसे अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, कॉन्स्टिट्यूशन अंग्रेज लोगों ने बनाया था, हमने थोड़े से चेंज करके अपना लिया, ठीक है? इस तरह से होता है। क्या होता है, हम एज ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री जस्ट इम्प्लीमेंट कर लेते, थोड़ा बहुत चेंज करके। ऐसे सब जगह होता है। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसा है, जैसे GAAP है, IFRS है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये अमेरिकन स्टैंडर्ड्स है, कोई ग्लोबल स्टैंडर्ड है। फिर इंडियन लोगों ने अपना स्टैंडर्ड फॉलो कर लिया है इन्हीं के बेसिस पे, इस तरह से रहता है। तो सी, देयर आर स्टैंडर्ड्स इन अकाउंटिंग, ओके, देयर आर नो स्टैंडर्ड इन हेल्थ केयर और डाटा प्राइवेसी। यू गॉट इट? जिस दिन आपको स्टैंडर्ड नाम सुनाई आएगा, उसके कुछ साल बाद आपको कंप्लायंस नाम सुनाई आएगा, उसके कुछ साल बाद आपको एक्ट नाम सुनाई आएगा कि गवर्नमेंट ने कोई एक्ट बनाया, और उसका एक्ट का नंबर होगा, वो नंबर सुनने में आएगा, और उस दिन आप समझेंगे कि उसको एज ए प्रोग्रामर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या फॉलो कर सकते हैं। तब तक ये जस्ट टॉक्स रहेंगी, अभी कोई देयर आर नो स्टैंडर्ड्स। जैसे अकाउंटिंग में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, ग्लोबली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, एक स्टैंडर्ड है GAAP, एक IFRS स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रेगुलेशनरी स्टैंडर्ड, ओके।
तो ये अकाउंटिंग में स्टैंडर्ड है, इसको फॉलो करना पड़ता है ग्लोबली। तो जब तक स्टैंडर्ड नहीं बनते चीजें आगे नहीं बढ़ती है। अब आते हैं ये अपन पॉलिसी रिकमेंडेशन पॉलिसी इसलिए बोल रहा हूँ कि देयर आर नो स्टैंडर्ड्स टिल नाउ, इसलिए पॉलिसी बनाई है IBM ने। तो हम पॉलिसी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा बहुत। देयर इज सी, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ पढ़ के। सपोर्ट प्रिसीजन रेगुलेशन, ओके, मैंने जो हाईलाइट किया वो देखना ध्यान से। देयर इज अ प्रिसीजन रेगुलेशन टू एड्रेस AI रिस्क, रिजेक्ट पॉलिसीज दैट वुड सैक्रिफाइस ओपननेस। सो IBM का कहना ये है कि देयर शुड बी ओपननेस। तो ये अगर आप जैसे ब्लॉकचेन इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो कम से कम डाटा को ओपननेस कर दो कि एक ओपन स्टैंडर्ड बने। जैसे इंटरनेट का एक IEEE करके एक कम्युनिटी है, ठीक है, वो इंटरनेट को गवर्न करती है ग्लोबली, बहुत सारे उसके मेंबर्स हैं। तो वो किसी गवर्नमेंट को टेक ओवर नहीं करने देते। जैसे मान लो इंटरनेट होता है तो अमेरिकन गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करती, फिर अमेरिका करता, ब्रिटेन करता, इंडियन गवर्नमेंट करती। तो ऐसा नहीं हुआ इंटरनेट पे, इसलिए नहीं हुआ कि उसको एक स्टैंडर्ड बॉडी गवर्न करती है। तो IBM क्या बोल रहा है कि देयर शुड बी ओपननेस का मतलब ये है कि एक स्टैंडर्ड बॉडी हो जो किसी गवर्नमेंट पॉलिटिकल प्रेशर से अलग हो, उसने ऊपर हो। सो सी हियर, हम जो हाईलाइट किए वो वर्ड्स देखिए, तो बाद में आप बाकी तो आप पढ़ सकते हैं। क्रिएटिंग एन AI लाइसेंसिंग रिजाइम, तो वो क्या बोलते हैं कि AI लाइसेंसिंग, AI जब सेंट्रली गवर्नमेंट होगा इंडिपेंडेंट लोगों के थ्रू, तो वो लोग क्या करेंगे, जैसे इंटरनेट में लाइसेंसिंग होती है कि गवर्नमेंट को ऐसे डोमेन्स दे रहे हैं आप, ठीक है, गवर्नमेंट को कुछ एक्सेस दे रहे हैं कि ये डोमेन्स रख सकते हैं, ये डोमेन्स जैसे .education है वो गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती, वगैरह वगैरह। तो ये लाइसेंसेस वो लोग गवर्न करेंगे, डाटा उनके पास रहेगा। सो ये पॉलिसी रिकमेंडेशन, ये सेकंड पार्ट है ना, एनेबल ओपन इनोवेटिव इकोसिस्टम। समझ लीजिए ओपन इनोवेटिव इकोसिस्टम बनेगा। तो इकोसिस्टम कब बनेगा, जब डाटा उस गवर्नमेंट के पास, कॉर्पोरेट्स के पास नहीं होगा, गूगल के पास नहीं होगा, डाटा उस एजेंसी के पास होगा, एंड दे विल डिसेंट्रलाइज इट एंड सेल्फ डायरेक्टेड। ओके, सो देयर इज ओपन इनोवेटिव इकोसिस्टम। ओके, सो अभी क्या हो रहा है, आपने नाम सुना है AI के मॉडल बन रही है, गवर्नमेंट गूगल रोज नए नए मॉडल बना रहा है, नाम सुना है ना आपने। अब फिर कोई एजेंट बना रहा है, अब गूगल बना रहा है, फिर माइक्रोसॉफ्ट है लाइन में। ये लोग बोलते हैं कि एजेंट्स गूगल और माइक्रोसॉफ्ट होकर नहीं बनाएंगे, एजेंट्स बनाएंगे सेंट्रली, और वो एजेंट्स का कैसे यूज होगा वो सेंट्रली अथॉरिटी डिसाइड करेगी, ठीक है। कोई कारपोरेट एजेंट नहीं बनाएगी, कोई कारपोरेट लार्ज लर्निंग मॉडल्स है, जो भी मॉडल्स है AI के, मशीन लर्निंग के, वो कारपोरेट नहीं बनाएगी, और कारपोरेट उसको कंट्रोल नहीं करेगी मॉडल्स को। गेटिंग माय पॉइंट? हेलो हेलो, Yes, sir. हाँ। Yes, sir. सो ये देखिए, जो मैं अभी समझा रहा था वो पॉलिसी रिकमेंडेशन में, ये पहले टॉपिक पे जो हाईलाइट है वो देख लीजिए, शेयर्ड कंप्यूटिंग एंड डाटा रिसोर्सेज, गॉट इट। सो ये क्या है, ये शेयर्ड है ना, लाइसेंस दिया है, एनीबॉडी कैन, दे विल गिव लाइसेंस, दैट इंडिपेंडेंट बॉडी। जैसे आपके कॉलेज है या आप है इंडिविजुअल है, आप उनसे मांगेंगे कि मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे को ये डाटा चाहिए और ये एक्सेस चाहिए, तो वो एक लाइसेंस देंगी आपको, और वो आप डाटा का इस्तेमाल करेंगे, कुछ डाटा का एक सेट रहेगा, और वो आपको मॉडल देंगे, फिर आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सो इट इज शेयर्ड कंप्यूटिंग एंड डाटा रिसोर्स एंड कंप्यूटिंग पावर। मॉडल देने से कुछ नहीं होता, मॉडल के पीछे कंप्यूटिंग पावर भी होती है, जानते हैं ना आप। बिना कंप्यूटिंग मॉडल के ना कंप्यूटिंग रिसोर्स के मॉडल काम नहीं करेगा। तो अभी क्या हो रहा है, जिसके पास मॉडल है उसी के पास कंप्यूटिंग पावर है, ध्यान रखिए।
जैसे गूगल के पास एक एजेंट है, तो गूगल के ही सर्वर पे बैठा है, वो उसका कोड नहीं दे रहा आपको, समझ में आया? तो वो दोनों चीजें एक साथ कंट्रोल होती है, इसलिए शेयर्ड कंप्यूटिंग पावर एंड शेयर्ड डाटा रिसोर्स, दोनों एक ही जगह से आना चाहिए। तो ये सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिसी मेकर शुड फंड इनिशिएटिव, है ना, पॉलिसी मेकर जो है वो उस ओपन इनिशिएटिव को फंड देना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ यूएस है, या कॉर्पोरेट्स है, ये उसको फंड देंगे, सेंट्रल है। और जैसे यूके ने अभी एक एआई रिसर्च कंपनी को फंड दिया है ड्रग डिस्कवरी के लिए एंड क्लीन एनर्जी के लिए, तो इसलिए दिया क्योंकि वो ओपन है, नेशनल एआई रिसर्च रिसोर्स करके बनाया है ये यूके में, ठीक है। दिख रहे हैं ना आप सेकंड पॉइंट में? तो ये क्या है, रिसर्च लोगों के लिए असेसिबल है, तो डाटा मॉडल और कोड और डाटा, ये सारी चीजें असेसिबल होती है। तो जब गवर्नमेंट फंड देती है तो वो आपके लिए असेसिबल हो जाते हैं। तो एज ए प्रोग्रामर यू शुड नो वो मॉडल का कोड किस तरह से, अगर आपको मॉडल का कोड नहीं पता होगा या इम्प्लीमेंटेशन नहीं पता होगा तो आप कैसे पता चलेंगे कि मॉडल बायस्ड है या नहीं है? समझ में आया मेरी बात? तो एथिक्स तभी आपको पता चलेगा ना कि जब तक आपके पास कोड नहीं हो किसी मॉडल का इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, कैसे किया आपको पता रहना चाहिए। थर्ड पॉइंट देखिए, प्रेसिडेंट बिडेन्स रिसेंट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑन एआई एस्टेब्लिशेस अ पायलट फॉर एनआईआरआर, जो ऊपर सेकंड पॉइंट में है, ठीक है। तो ये है शायद ये नासा के हाँ, तो इस तरह का एक इनिशिएटिव आना चाहिए, ये आईबीएम का रिकमेंडेशन है, ठीक है। तो ये देखिए क्या हो रहा है अगले पॉइंट में, ये आईबीएम ने जो रिकमेंड किया है वो ओपन इनोवेटिव इकोसिस्टम फॉर एआई, ठीक है। और जैसे कि आईबीएम ने नासा के साथ एक पार्टनरशिप किया है, तो थोड़ा एक लो लेवल का पार्टनरशिप है, छोटे से लेवल का है, लेकिन ये ओपन इनिशिएटिव इकोसिस्टम बनना चाहिए, तभी आप ये एथिक्स की बात करेंगे, डाटा प्राइवेसी की बात करेंगे, ठीक है। तो दो तरीके हो सकते हैं, या तो ब्लॉकचेन हो सकता है कि मेरा डाटा मैं ओनर, ठीक है, या दूसरा चीज हो सकती है कि ओपन इनोवेटिव इकोसिस्टम बन जाए। अब आते हैं, सो वी टॉक अबाउट रिस्पॉन्सिबल एआई, गॉट इट। तो देखिए एथिक्स की बात नहीं हो रही है, अब रिस्पॉन्सिबल एआई, रिस्पॉन्सिबल का मतलब ये है कि कुछ गलत हो जाए तो हम किसी की कॉलर पकड़ सके, ठीक है, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं, समझ में आया ना। तो रेगुलेशन बनने के बाद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होती है कि कुछ गलत हो गया, किसी ने डाटा लीक हो गया तो किसकी गर्दन पकड़ेंगे आप। तो हियर कम्स द पार्ट रिस्पॉन्सिबल एआई। तो ये कीवर्ड ध्यान रखिए, रिस्पॉन्सिबल एआई, तो उसके बारे में, ठीक है। सो बिजनेसेस आर फेसिंग एन इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्स ओवर चेंजिंग ग्लोबल रेगुलेटरी लैंडस्केप, ओके। तो ये रेगुलेटरी लैंडस्केप चेंज हो रहा है, और ये अभी कैसा है, अभी कोर्ट में केस जाता है, लेकिन इन द अब्सेंस ऑफ प्रॉपर लॉ जज क्या करता है, डिस्क्रेशन से करता है। जैसे जूलियस असांज को जेल है, उसके लिए कोई लॉ नहीं है, बस जेल है ना, जेल में रखा है उसको, 20 साल हो गए बेचारा जेल में है, ठीक है, और उसने कुछ नहीं किया, उसने वाइकी लीक कर दिया है ना। अब वाइकी तो ओपन है, और वाइकी में एक पार्ट ऐसा था जिसको सीक्रेट रखा गया था, उसने क्या किया, वो उसका एक पेन ड्राइव में जिप बनाया कुछ टेराबाइट्स का और सबको दे दिया। तो गवर्नमेंट ने बोला कि इसने ब्रीच किया, लेकिन वो ओपन, वाइकी ओपन होना चाहिए था, बायोलॉजिक, उसने सबको दे दिया। तो देने के कारण बहुत सारी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन आ गई लोगों के पास, तो कोई रूल ना होते हुए भी वो जेल में है। इसलिए होता क्या है कि ये रेगुलेटरी जो लैंडस्केप होता है, ये कोर्ट का डिस्क्रिप्शन पे हो रहा है कि जज ने बोला कि जेल हो जाए तो हो गई, जज ने बोला कि छोड़ो इसको तो छूट गया, इस तरह की बात हो रही है, और ये चेंज हो रहा है। और लॉजिक्स भी बहुत
अनक्लियर लॉजिक्स होते हैं कोर्ट में, क्योंकि कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं है। अब आ रहे हैं तो आईबीएम ने क्या किया है, यहाँ पे देखिए पॉलिसी रिकमेंडेशन बना है, पॉलिसी रिकमेंडेशन के ऊपर फाउंडेशन मॉडल्स बना है उसने, ठीक है। ये फाउंडेशन मॉडल्स आप ये सेकंड जो डॉक्यूमेंट है, ये सेकंड डॉक्यूमेंट दिख रहा है ना आपको, फाउंडेशन मॉडल्स, ये आईबीएम की तरफ से आया है, इसको आप देख लीजिए, बहुत अच्छा है और ज़्यादा बड़ा नहीं है, शायद 10-20 पेज का है। तो ये फाउंडेशन मॉडल है, तो एथिक्स ऑफ फाउंडेशन मॉडल, ये आईबीएम की तरफ से है। तो फाउंडेशन मॉडल पे जाते हैं, तो ये क्या बता रहा है कि वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ फाउंडेशन मॉडल एथिकल अप्रोचेस। वी होप दिस डॉक्यूमेंट इज यूजफुल फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स, ओके, एंड डेवलपिंग, डिप्लॉइंग एंड यूजिंग द फाउंडेशन मॉडल इन अ रिस्पॉन्सिबल वे। तो ध्यान में आ रहा है आपको, रिस्पॉन्सिबल एआई दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे जितने भी स्टेक होल्डर्स है, एवरीबॉडी इज स्टेक होल्डर, आपसे लेके एज अ प्रोग्रामर से लेके जो एंड यूजर है, जो डाटा का ओनर है, गवर्नमेंट है, कॉर्पोरेट्स है, एवरीबॉडी इन बिटवीन इज ए स्टेक होल्डर। तो उनके लिए उन्होंने फाउंडेशन मॉडल बनाया है, ठीक है। सो डिप्लॉइंग एंड यूजिंग द फाउंडेशन मॉडल इन रिस्पॉन्सिबल वे। रिस्पॉन्सिबल वे का मतलब क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, everybody takes responsibility for certain part of implementation of some legislation or some act, some part of act. Now we come next topic, AI governance policy framework based on 3 pillars. ये 3 pillars है जो IBM ने prescribe किए: accountability, transparency, fairness and security. You got it? मैं टाइम देख ले रहा हूँ थोड़ा, 8:16, हाँ टाइम है। तो अकाउंटेबिलिटी आपको समझ में आ गया, ट्रांसपेरेंसी समझ में आ गया, क्योंकि डाटा कुछ लोगों के पास है जो कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। फेयरनेस एंड सिक्योरिटी है। फेयरनेस का मतलब ये है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप थर्ड वर्ल्ड कंट्री से हो और आप रिसर्चर हो तो वो सेंट्रल कमिटी बोले कि चलो हटो, आप तो इंडिया से आते हो, आपको डाटा नहीं देंगे, ठीक है, आप पीएचडी कर रहे हैं। और जो अमेरिका से आ रहा है, कोई एमआईटी में है या कहीं बड़े इंस्टीट्यूशन में, चलो उसको पूरा डाटा दे देते हैं क्योंकि वो अमेरिका का बैठा हुआ आदमी है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फेयरनेस और सिक्योरिटी रहना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी रहना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी रहना चाहिए। ये कब आता है कि जब वो इंडिपेंडेंट बॉडी अपनी वेबसाइट पे शो करे कि हमने इस एजेंसी को, इस रिसर्च एजेंसी को, रिसर्च पर्सन को ये डाटा दिया है, ये असेस दिया है डाटा के लिए, और ये मॉडल एक्सपोज किया है, ये मॉडल का कोड एक्सपोज किया है। और समझ में आया ना आपको, ये सब चीजें। अब ये बिल्डिंग फ्रॉम दिस 3 पिलर्स, ये जो 3 पिलर है इसके आगे चल रहे हैं हम। तो ये 3 पिलर पे अब हम 5 पॉलिसी इम्परेटिव्स पे आते हैं। ये देयर आर 5 पॉलिसी इम्परेटिव्स जो 3 पिलर्स पे बन रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस एंड सिक्योरिटी के बेस पे। तो ये देयर आर 5 पॉलिसी इम्परेटिव्स। तो आप देखिए ये पॉलिसी इम्परेटिव, पॉलिसी यानी क्या होता है, मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे स्टैंडर्ड बनेंगे तो स्टैंडर्ड के पहले पॉलिसी बनेगी। पॉलिसी इम्परेटिव, पॉलिसी इम्परेटिव का मतलब ये है कि ये चीज होना चाहिए, ठीक है, ये चीज होना चाहिए। तो देयर आर 5 थिंग्स जो स्टैंडर्ड बनाने वाले एजेंसी को फॉलो ही करना पड़ेगा कि ये 5 चीजें होना ही चाहिए स्टैंडर्ड बनने के पहले, ठीक है। तब स्टैंडर्ड बनेंगे, फिर कंप्लायंस बनेगा, फिर एक्ट बनेगा। तो ये पहला पॉलिसी इम्परेटिव है। ये पहला क्या है, डेजिग्नेट अ लीड एआई एथिक्स ऑफिशियल। इस पॉइंट पे सारे लोग सुन रहे हैं ना मेरी बात? हेलो हेलो, यस हो गए? हाँ नो सर। हाँ। देखिए अब मैं बनाते हुए ला रहा हूँ अपना केस, ठीक है, जो कि एथिक्स के बारे में था। तो हम एथिक्स के आगे निकल गए अभी थोड़ा। तो ये पहला पॉइंट है कि डेजिग्नेट लीड एआई एथिक्स ऑफिशियल।
इन्हें एक एआई एथिक्स ऑफिशियल को डेजिग्नेट करेंगे, ठीक है। ये ग्लोबल लेवल पे एक आदमी रहेगा, जैसे आईईई के लिए टिम बर्नर्स ली था जिसने इंटरनेट इन्वेंट किया, तो वो क्या बना, एक ऑफिशियल बना, उसने डिसाइड किया कि एथिक्स क्या रहेंगे इंटरनेट के, क्योंकि लोग जैसे डार्क वेब है, कुछ है, बहुत सारे लोग मिसयूज करना चाहते हैं, गवर्नमेंट भी करना चाहती है, तो एक टॉप में एक ऑफिशियल चाहिए जो कि इंडिपेंडेंट चाहिए, ठीक है। तो वो ये कंसेंसस बेस्ड एक पर्सन रहेगा जो ग्लोबली सारी चीजों को गवर्न करेगा, ओवरसी करेगा। ये पहला पॉइंट है पॉलिसी इम्परेटिव्स के लिए, ठीक है। तो ये हर जगह है ना, ग्लोबल लेवल से लेके गवर्नमेंट लेवल, कॉर्पोरेट लेवल, जब जहाँ पे ये पॉलिसी बनेगी वहाँ पे एक एथिक्स ऑफिशियल रहेगा, एआई एथिक्स ऑफिशियल रहेगा। तो फर्स्ट पॉइंट में फर्स्ट जो प्रेजेंटेशन था वहाँ पे कोई पूछ रहा था मुझसे जीडीपीआर वगैरह के बारे में, ठीक है, उसको शायद आंसर मिल गया एथिक्स के लिए बारे में, ठीक है। हम सेकंड पॉइंट पे आ रहे हैं। ये सेकंड पॉलिसी इम्परेटिव, डिफरेंट रूल्स फॉर डिफरेंट रिस्क। देखिए अलग अलग रिस्क के लिए अलग अलग रूल बनना चाहिए। तो ये अगर एक्सपोज कर रहे हैं हम किसी रिसर्चर को, किसी ग्रुप को, किसी भी, ठीक है, तो हर बार जब डाटा हम एक्सपोज कर रहे हैं, क्योंकि डाटा डेमोक्रेटिक है, डाटा सेंट्रली एक इंडिपेंडेंटली गवर्न हो रहा है, लोग मांग रहे हैं डाटा रिसर्च के लिए। जैसे कोई कैंसर का रिसर्च कर रही है, उसको डाटा चाहिए, तो आप डाटा तो देते हो किसी एजेंसी को, लेकिन होता क्या है, वो रिस्क इन्वॉल्व रहती है, तो रूल्स बनाएगा पॉलिसी मेकर, ओके, समझ में आ रहा है ना। तो हर तरह के रिस्क के लिए अलग रूल बनेंगे। बेसिक बहुत कॉमन सेंस है, समझ में आ रहा है ना आपको ये सब चीजें। फिर थर्ड उस पे आ रहे हैं पॉलिसी इम्परेटिव फॉर कंपनीज और डोंट हाइड योर एआई, जो कि मैं बोल रहा था, मशीन लर्निंग के मॉडल होते हैं, डाटा होता है, मॉडल का कोड होता है जिस इस तरह से इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है। डोंट हाइड योर एआई। आज की तारीख में आप गूगल का कोई मॉडल इस्तेमाल करते हैं, उसको डाटा देते हैं, आपको पता नहीं रहता है कि आप गूगल, आपको तो रिजल्ट मिल जाता है डाटा से, ठीक है। आप पाइथन यूज करके चलो आपने डाटा लिया, लेकिन वो गूगल को आप डाटा मिल गया बैठे बिठाए आपका, ठीक है। तो आप R&D कर रहे हैं और गूगल इसका बेनिफिट ले रहा है। आपने तो पैसा देकर डाटा लिया, बहुत मेहनत किया, जैसे कैंसर का डाटा है, डीएनए का डाटा है, आपने कलेक्ट किया, आपने गूगल के एजेंट को दे दिया डाटा, ठीक है। गूगल ने बोला मेरे पास बहुत अच्छा एजेंट है, आपने दे दिया डाटा, उसने चर्न करके आपका आउटपुट दे दिया, लेकिन हुआ क्या है, और वो डाटा गूगल को बैठे बिठाए मिल गया, ठीक है। ये इसलिए हुआ कि गूगल ने जो एआई है, एक्चुअल एआई है, वो हाइड करके रखा है आपसे। तो एवरी एजेंसी जो आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसमें अभी एआई सीक्रेट है, आप केवल इस्तेमाल कर रहे हैं एज एन एआई इंजीनियर। तो ये थर्ड पॉइंट है कि डोंट हाइड योर एआई। आपको पता रहना चाहिए कि मेरा जो डाटा है, जो चर्न कर रहा हूँ, वो कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा है, वो डाटा केवल मैं केवल प्रोसेस करके हट गया है, ठीक है, मुझे रिजल्ट मिल गया है, ठीक है। ऐसा नहीं हुआ कि वो डाटा और किसी को चला गया है, डाटा और रिजल्ट। ऐसा हुआ कि आपको किसी का, जैसे कैंसर का कोई सॉल्यूशन मिल गया और आपसे पहले तो गूगल ने एक मेडिसिन लॉन्च कर दिया, आपको पता चलेगा, आपने बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किया, ठीक है, और गूगल आता है, गूगल ने किसी कंपनी को फंड किया है और वहां पे डिक्लेयर हो जाता है कि उन्होंने कोई इन्वेंशन कर लिया है, जबकि वो इन्वेंशन आपका रहता है। इस तरह की चीजें हो सकती है, तो इसलिए डोंट हाइड योर एआई, इट इज द थर्ड पॉइंट। समझ में आ रहा है ना मेरी बात? हेलो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो गया? Yes, sir. हाँ, चौथा पॉइंट क्या है, एक्सप्लेन योर एआई, जो कि मैं बोल रहा था कि आप जो इधर था, डोंट हाइड योर एआई, और जो भी मॉडल्स वगैरह है वो एक्सप्लेन करना चाहिए कि क्या कर रहा है, ठीक है।
ये हाईलाइट किया मैंने, ओनर्स एंड ऑपरेटर्स ऑफ दिस सिस्टम शुड आल्सो मेक अवेलेबल एंड एज appropriate and in context that the relevant end user can understand. ठीक है, कि जो जैसे आप रिसर्चर है, आपको पता रहना चाहिए कि मॉडल क्या काम कर रहा है, वो केवल वो काम करके हट जाए, बैकग्राउंड में कुछ और काम नहीं करे वो, और एग्जैक्टली आपको पता रहना चाहिए कि वही काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि वो बायस कर रहा है, ऐसा नहीं कि वो गलत तरीके से प्रोसेस कर रहा है, ये भी तो आप नहीं जानते ना, किसी ने एजेंट एक्सपोज किया है और वो गलत तरीके से काम कर रहा है, ठीक है, और वो इंटेंशनली गलत तरीके से काम कर रहा है। चलो ऐसा भी नहीं कि किसी गलती है इम्प्लीमेंटेशन की, ऐसा भी हो सकता है कि वो इंटेंशनली गलत आपको फीडबैक दे रहा हो, ठीक है। फिर ये 5वां पॉइंट है, टेस्ट योर एआई फॉर बायस। बायस कई तरह के हो सकते हैं, ठीक है, तो टेस्ट योर एआई, तो आपके पास ये कैपेबिलिटी भी देना चाहिए उस ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने वाले ने, कि आप टेस्ट कर पाए कि वो डाटा प्रोसेस सही तरीके से हो रहा है कि नहीं। समझ गए ना आप? जो इस पूरे पैराग्राफ का कोर पॉइंट है कि आपके पास मैं कोई क्लेम कर रहा है कि मैं ऐसा काम करता हूँ, ये कि आप ये डाटा का आउटपुट, ये डाटा मिलेगा आपको, ये आउटपुट मिलेगा, लेकिन आपके पास टेस्ट करने के लिए कुछ एक फ्रेमवर्क करना चाहिए कि चलो हम टेस्ट करेंगे कि जो इनपुट डाला उसका प्रॉपर आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। आज की तारीख में ऐसा कोई फ्रेमवर्क नहीं है। जब तक ये चीजें नहीं होंगी तब तक पॉलिसीज इंप्लीमेंट नहीं होगी, ठीक है। तो ये अपना प्रेजेंटेशन क्लोज हो गया है। आपको बात समझ में आई ना? ये बात केवल एथिक्स तक की नहीं थी, ये बात कुछ हम लोग आगे खींच के ले गए। हेलो एवरीबॉडी। Yes, sir. तो हाँ, अब आप पूछिए, लेकिन मुझसे आप पाइथन का क्वेश्चन मत पूछिए। मुझसे केवल जनरल ओवरव्यू टाइप के क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि ये ओवरव्यू है अपन जो काम कर रहे हैं अभी, आज जो टॉपिक है अपना, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है क्या इसमें? Any participants having any query, you can ask. इन्हें मैं ये बोल रहा हूँ कि टॉपिक से भटकिए मत। जैसे मैं कल परसों देख रहा था कि जस्ट आप टॉपिक, आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस है, उसको आप 4 साल पढ़ रहे हैं, 10 साल से पढ़ रहे हैं, लेकिन चीजें अब तक जो सॉल्व नहीं हुई, मैं 3 घंटे में कैसे कर सकता हूँ? केवल ये टॉपिक्स के बारे में पूछिए बस। मैं हेलो, ये बहुत जनरल है, किसी को पूछना है कुछ? Participants can ask your question. Mr. Devendra Katuke is an industrial person, so he can answer your questions. You can ask any type of query. तो नहीं है एक्चुअली, ठीक है। हाँ, ये क्या सर, प्रिवेंटिव मेजर्स ऑन हाउ टू प्रोटेक्ट डाटा ऑफ मोबाइल एंड पीसी, ओके, डे टू डे लाइफ इन जनरल। मैं सिंपली बताया, जैसे हिंदी में बता देता हूँ कि आप जैसे मोबाइल और पीसी पे तो आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं, जैसे डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, एंड्रॉइड की एप्लीकेशन बनाई है, तो आप जनरली क्या करेंगे? देखिए मैं बताता हूँ, जो मैंने बहुत स्टार्टिंग में बताया था कि आप सिंपली आप यूजर से डाटा कलेक्ट मत कीजिए। जैसे आप अभी जैसे कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो आप क्या करते हैं, साइन अप और चेक इन, साइन अप और चेक इन 2 फॉर्म बनाते हैं। तो साइन अप में आप 5 चीजें पूछते हैं, आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ऑर्गेनाइजेशन नेम, ईमेल, फोन नंबर पूछते हैं ना आप, तो आप मत पूछिए ये चीजें, ठीक है।
आप सिंपली एक टेक्स्ट बॉक्स दीजिए जिसमें बोलिए कि एंटर योर आधार कार्ड नंबर, ठीक है, और ऐसा इम्प्लीमेंटेशन हो कि बस वो आधार कार्ड नंबर डाल दे और उसको ओटीपी चला है, तो ना आपने कोई डाटा कलेक्ट नहीं किया, ठीक है, और सिंपली ओटीपी चला है कि आधार कार्ड वाले का ये ओटीपी है, समझ में ना। तो इस तरह से आप डाटा प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो आपको पता नहीं रहेगा एज ए एप्लीकेशन डेवलपर कि कौन इस्तेमाल कर रहा है, सिंपली वो पैसे दे रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, आपको उसका नाम नहीं पता, आपने उसका कोई डाटा कलेक्ट नहीं किया। गॉट इट? हाँ, ये सेशन दूसरा क्या है, हाउ टू प्रोटेक्ट डाटा टू गेट स्टोलन एट द प्रोग्रामर लेवल। एक्चुअली एज ए प्रोग्रामर आपका काम नहीं है, आप एप्लीकेशन बना रहे हैं ना, आपका काम नहीं है। जनरली अभी क्या होता है, बैकएंड में जो क्लाउड में आप जहाँ पर डाटा रखते हैं, जैसे कोई भी क्लाउड प्रोवाइडर है, मैं सिंपली अभी बात कर रहा था CORS वगैरह की, ठीक है, वो इम्प्लीमेंटेशन करना सीख जाइए कि जो डाटा आता है, और वो लोग आपको कि नहीं एक SDK देते हैं क्लाउड प्रोवाइडर्स, वो SDK इम्प्लीमेंट कीजिए, उसमें एक यूजर की होती है, एक टोकन रहता है जो सीक्रेट रहता है, वो एन्क्रिप्टेड रहता है, आपको केवल वो SDK रहता है, हर क्लाउड प्रोवाइडर एक SDK देता है, जैसे क्लाउड प्लेयर का नाम सुना आपने, ठीक है, तो क्लाउड प्लेयर का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, या मैं डाटा स्टैक्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ, डाटा ब्रिक्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्लाउड प्रोवाइडर का, जहाँ जो लोग डाटा स्टोर कर रहे हैं मेरा, तो ये लोग एक SDK देते हैं, तो उसका SDK के अंदर कीज वगैरह देते हैं, तो वो कीज को कोई ब्रेक नहीं कर सकता, और यूजुअली आप वो की अपने सॉफ्टवेयर में एम्बेड कर लेते हैं, ठीक है, आप उसमें ट्विक नहीं करते, जिस दिन आपने ट्विक किया तो डाटा कंप्रोमाइज हो जाएगा, तो सिंपली आप ट्वीट नहीं कर सकते उसमें, और वो जिम्मेदारी उनकी रहती है, आपकी नहीं रहती। अगर वो क्रैक हो गया तो उनकी गलती है, उनका फिर वो क्रैक करने वाला पूरा क्लाउड क्रैक कर लेगा, पूरा AWS क्रैक कर लेगा, वो आपके छोटे से सॉफ्टवेयर के पीछे नहीं आएगा। Okay. So, Sarah, I think, Yes. yes. Any participant having some participants having any query? Oh no, हाँ ठीक है, ओके। Participants can ask your question by unmuting yourself, or you can type your question in chat box. ओके, सो सारा आई थिंक सारे लोग सो गए हैं, 3 घंटा बहुत होता है। No, sir, some of participants are still alive. Yeah, I am seeing that. So Vaishali, please close your video. Okay. Thank you. Okay, Manisha is saying that she is listening still. Okay, still alive, still listening. So, how many types in BC to secure our data? What is BC? Hello, Anjali.
What is BC? Blockchain. Okay. सो मैं थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ, मैं 5 मिनट और ले रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये अंजलि किसी ने पूछा है कि ब्लॉकचेन में हाउ टू प्रोटेक्ट योर डाटा। अब हम आते हैं ब्लॉकचेन का जो इम्प्लीमेंटेशन होता है। ओके, तो आपने सुना होगा कि क्रिप्टोग्राफी होता है। ब्लॉकचेन इज ब्लॉकचेन बेस्ड ऑन क्रिप्टोग्राफी। ओके, सो जो क्या होता है, ब्लॉकचेन कोई ऑफर करता है आपको, तो जो क्रिप्टोग्राफी ऑफर करता है, क्रिप्टोग्राफी क्या है? ये क्रिप्टोग्राफी ब्लॉकचेन में एक ऐसा मैकेनिज्म है कि जितने भी लोग हैं उनके कंप्यूटिंग रिसोर्स का इस्तेमाल करके एक की को क्रिप्टोग्राफिक एक पब्लिक क्रिप्टोग्राफिक की होती है। की में 2 पार्ट होते हैं, एक पब्लिक की, एक प्राइवेट की। तो एक पब्लिक की होती है, वो क्रिप्टोग्राफी ब्लॉकचेन में वो पब्लिक की एक्सपोज रहती है। तो पब्लिक की होता है कंप्यूटिंग रिसोर्स क्रैक करती है, ठीक है, उसको क्रैक किया जाता है। और वो क्रैक करने के बाद में ब्लॉकचेन प्रोग्रामर आप इम्प्लीमेंट नहीं करते सिक्योरिटी, समझ में है? तो वो ब्लॉकचेन का जो ओनर रहता है, जैसे बिटकॉइन हो गया, जो भी है, हाँ, ब्लॉकचेन हो गया या कोई भी Excuse me, one of the participant has started their video and screen. Please unmute yourself. It's very disturbing. या हाँ, तो होता क्या है कि वो क्रिप्टोग्राफी को क्या जो पब्लिक की होता है उसको आपको बार बार डिकोड करना पड़ता है। और डिकोड प्राइवेट की को आप डिकोड नहीं कर सकते। दैट इज द बेसिस ऑफ ब्लॉकचेन। प्राइवेट की जिसने ब्लॉकचेन इनिशिएट की है, देयर इज वन ओनर ऑफ ब्लॉकचेन, तो उसके पास सीक्रेट रहती है। लेकिन पब्लिक की जो आपको देता है एज ए ब्लॉकचेन यूजर, उसको आप तोड़ते हो, लेकिन वो आप नहीं तोड़ते। एज ए प्रोग्रामर आप जो कोडिंग करते हो तो कोडिंग में डिकोड करते हो, तो वो ब्लॉकचेन की एपीआई से डिकोड करते हैं। तो पब्लिक की जो बार बार आपको डिकोड करना पड़ता है, आपको ब्लॉकचेन किसी को फॉरवर्ड करना पड़ता है, तो वो बार बार डिकोड होता है। डिकोड करने में रिसोर्स लगता है। जो आप क्वांटम कंप्यूटिंग सुन रहे हो, जो तो वो इसी बारे में है कि वो ब्लॉकचेन की जो क्या हो रहा है यहाँ पे, जो जैसे चाइनीज गवर्नमेंट है, जब क्वांटम कंप्यूटर्स बना रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं कि जो प्राइवेट की होती है ब्लॉकचेन में, उसको तोड़ना चाहते हैं। तो प्राइवेट की को तोड़ने के लिए बहुत कंप्यूटिंग पावर लगती है, जो कि इवन क्लाउड प्रोवाइडर्स के पास भी नहीं होती है, ठीक है, तो वो गवर्नमेंट्स के पास होती है। इसलिए वो लोग सुपर कंप्यूटर बना रहे हैं, क्वांटम कंप्यूटर्स बना रहे हैं, केवल उसी लिए कि वो जो प्राइवेट की होती है उसको तोड़ सकते हैं, तोड़ पाए किसी तरह से। तो दैट रिक्वायर्स ह्यूज computing resource. We cannot do it. No hacker can do it. You got it? So you don't have to implement it. It is already secure and you don't have to worry about it. और ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड हाइपर लेजर्स आप अलग से बात कर सकते हैं, क्योंकि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और हाइपर लेजर्स ब्लॉकचेन की पार्ट है, ठीक है, वही ब्लॉकचेन का पार्ट है। हाइपर लेजर है ना, डाटाबेस है, और कॉन्ट्रैक्ट है ना, हर तरह की एप्लीकेशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट है। तो वो हर कोई भी ब्लॉकचेन आप इम्प्लीमेंट करेंगे ना, तो उसमें आ जाएगा। ये वेब3 का पार्ट है, ये अपने एआई के डिस्कशन से अलग चीज है। लेकिन मैं बोला हूँ कि एक्चुअली आपका डाटा ब्लॉकचेन में रहना चाहिए। इनकेस कोई इम्प्लीमेंट करना चाहे तो वो कर सकता है। इट इज बिगिन समबडी इंटरेस्टेड, बट ये टेक्निकल चीज है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और हाइपर लेजर, ये जनरल ओवरव्यू का नहीं है।
Any other question from participants? Sarah, I think we should close it now. Okay. Okay, sir. Okay, somebody. Okay, sir. Shall we conclude the session? No, somebody is asking something, I think. In how many policies are used to secure? अरे यार ये बात कर चुका हूँ. There is no policy. There is some draft implementation. ये मैं स्लाइड शो बता रहा हूँ ना, इसी में पता चल जाएगा कि हाउ मेनी पॉलिसीज की बात नहीं आ रही. देखिए क्या होता है, पॉलिसीज के पहले पॉलिसी क्या होता है, पब्लिक डोमेन में होती है पॉलिसी, और फिर स्टैंडर्ड कंप्लायंसेस और एक्ट्स बनते हैं. तो ये पॉलिसीज जो होता है, पॉलिसीज आर ड्राफ्ट रेगुलेशंस जस्ट. तो देर इज नो पॉलिसी राइट नाउ. तो जब तक अंजलि आपको पता चल गया देर इज नो पॉलिसी टू सिक्योर आवर डाटा, देर इज सम टॉक्स गोइंग ऑन, जो कि मैं बताया था पिछले स्लाइड्स में. गवर्नमेंट ने अभी पिछले साल ही कुछ पॉलिसी बनाने की शुरुआत की है. इसको लंबा टाइम लगता है. क्या होता है, पॉलिसीज बनती है ना, तो उसमें फीडबैक्स आते हैं लोगों से, फिर वो डिस्कशंस होते हैं, पैनल्स बैठते हैं, कमिटीज बैठती है, फिर वो अप्रूवल के लिए आती है संसद में, फिर वो पास होता है, फिर वो 2 बार फेल होता है संसद में, पास होता है, फेल होता है, झगड़े होते हैं वहां पे, फिर वो एक्ट बनता है. ये लंबा प्रोसेस रहता है. चलिए, और अभी पॉलिसीज भी नहीं बन रही है. Okay, sir. Shall we conclude the session? I think so. Okay, sir. So the session is very thoughtful. Thank you, sir, for sharing your expertise with us. Your session was highly informative and helpful. It was incredibly enlightening. Thank you, sir. Thank you everybody झेलने के लिए. Thank you, No, sir. sir, it is not like that. We are really grateful you have joined us and delivered your expertise with us. So thank you, Sarah. Thank you for giving me opportunity to speak. तो एमटेक के स्टूडेंट्स के साथ बात टॉक करके मुझे भी अच्छा लग रहा है. मैं ऐसा लग रहा है कि आई एम समबडी, बिकॉज यू आर एमटेक एंड पीएचडी पीपल. मैं सारे बीटेक और एमसी लोग काम करता हूँ. फोन है. यस. Yes, sir. You were saying something. No, I think I should close now. Thank you, sir. Thank you. Your presence is really valuable for us. Thank you, sir. Thank you, everybody. Thank you, Sarah. Dear participants, with this, we come to the end of our second session also. Thank you all for your participations. Now, I request all the participants to please fill the feedback form which I posted in chat box already 3 to 5 times. So please fill the feedback form and mark your attendance before leaving the session. Thank you all. We will see you tomorrow.